Friends, most welcome all of you in MCC English classes. I hope that you will be very happy and glad and healthy. So today I am going to teach you the negative sentence of future continuous tense. In my last videos, you have studied and looked the remaining the back portion of this tense. So once again, all students and friends, welcome the negative sentence of future continuous tense. Understand? So in my last video I have told you about simple sentence, and in this video I am going to teach you, I am going to tell you the negative sentence. Okay, so once again I want to say all the students, all the friends, that you subscribe my channel, you like my channel, you comment in this channel, and you tell also your friends, your brother and sister, and many persons about this channel. Okay, because this channel promise to you that you will be one day very good learners, very wise and very sensitive student if you look my all videos very carefully and continually all my videos. Understand? So dear friends, I believe all friends that you look my video continue and you tell your friends, because this is the time, this is the century of English language, and indeed you don't miss this time, you don't miss this century, because if you go anywhere, so English is very necessary language. Many types of offices, many types of factories, many types of companies, so there English is very necessary, English is very neat language. So you don't forget that English is very important language nowadays. So wake up and start to work hard, start to learn, start to study English language. Understand? If you know grammar very detailed, if you know grammar in deep, so you don't go to learn, you don't go to learn how to speak English. So you started to study, and one day you speak English, you write English. Look me, I did not learn anywhere to speak. Okay, it is the bless of my teachers, it is bless of my parents, it is bless my all types of guidance people, that today I speak English, I teach English, I write English. Okay, so you also you all friends, you all my friends will not have to go anywhere to study to learn how to speak English. If you study the grammar, if you learn the grammar, so yourself you can speak English. Okay, so be ready, be alert, and look the total video, look complete video, and you will be a perfect student one day. It's my promise. Okay, so look here. तो मैंने आपको सिंपल जो है बता दिया था इसके पिछले वीडियो में। मैं यहां पर आपको लेकर के आया हूं एक जोरदार, शोरदार, शानदार, झनाटेदार और जबरदस्त टॉपिक, जिसको कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस। किसका? फ्यूचर कंटीन्यूअस का। किसका? फ्यूचर कंटीन्यूअस का। किसका? फ्यूचर कंटीन्यूअस का। फ्यूचर कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। नेगेटिव का मतलब ही है नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आया हो। क्या? नेगेटिव का मतलब ये नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आया हो वही नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है। जिसमें जानवर की गुण हो जानवर, जिसमें मनुष्य की गुण हो मनुष्य, सीधी सी बात। तो यहां नेगेटिव की बात हो रही है बाबू, इसमें नाट आया रहेगा, ध्यान रहे आपको, नाट आया रहेगा, इसके एग्जाम्पल में नाट आया रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इसके रूल को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इसके रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट रखेंगे, शैल नॉट बी रखेंगे, विल नॉट बी रखेंगे। ध्यान रहे, शैल बी नॉट नहीं होगा, विल बी नॉट नहीं होगा। हमारी बात को ध्यान दें, शैल बी नॉट नहीं होगा, विल बी नॉट नहीं होगा। क्या होगा? शैल नॉट बी होगा, विल नॉट बी होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। शैल और बी के बीच में नॉट, विल और बी के बीच में नॉट आएगा। इस चीज को ध्यान दें। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि शैल बी नॉट, विल बी नॉट करते हैं, लेकिन यहां पर आपको पूरी तरीके से खुल करके बताया जा रहा है
सब्जेक्ट शैल नॉट बी, विल नॉट बी, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप समझ चुके। इसके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे आप सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन मैं भी इस वीडियो कंप्लीट कर देता हूं। तो अब फिर आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा, शैल किसके साथ? तो शैल उसी के साथ। भैया क्यों बार बार आप अपने माथा खपा रहे हो? आई और बी के साथ भी अभी भी वही होगा। क्या होगा? शैल ही आएगा, और इसके साथ जो भी तामझाम सब रखिए। शैल सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी, विल नॉट बी, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या? यही देखिए, सब्जेक्ट शैल नॉट बी, विल नॉट बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखता हूं, एग्जाम्पल में देखता हूं, मछुआरा, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा होगा। ओके, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा होगा। सिंपल ही है, लेकिन नेगेटिव है। क्योंकि मैं क्यों सिंपल ही कह रहा हूं? क्योंकि सारे के सारे रूल्स वैसे हैं, इसमें केवल आपको नाट लगा देना है, और नाट वो भी शैल के साथ में नाट आएगा। एक चीज ध्यान देना, नाट कभी अकेले नहीं होता है, नाट के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। नाट कभी अकेले हो ही नहीं सकता, इस चीज को आप मान के चलिए। उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, कभी अकेला हो ही नहीं सकता नाट। नाट अकेला कभी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? यस, कभी नहीं हो सकता। तो आप चलिए, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा होगा। आपको पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट मीन्स करता, किसी विभाग में जो सब काम करता है वही कर्ता कहलाता है। मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा होगा, मछुआरा आपका करता है, क्योंकि मछली नहीं पकड़ने का मछुआरा कर रहा है। तो क्या लिख दे? फिशरमैन, FISHER फिशरमैन। उसके बाद क्या रख दे भैया? हेल्पिंग वर्ब में से विल नॉट बी आएगा, विल नॉट बी आएगा। क्यों? क्योंकि शैल के साथ आई भी आया है, तो आई और बी तो करता आपका है नहीं, इसलिए इसके बाद जो भी आते सबके साथ विल नॉट बी आएगा। अब आपको वर्ब एक्शन वर्ड रखना है। पकड़ना आपका एक्शन वर्ड है। कैच मीन्स पकड़ना, CATCH, इसी में एनजी लगाना है, कैचिंग हो गया, डिस्टेंट। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट है मछुआरा जिसको पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट है मछली। ओके, तो क्या? कैचिंग द फिश, FISH, इन द लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? फिशरमैन विल नॉट बी कैचिंग द फिश। क्या क्या? फिर से बोलिए, फिशरमैन विल नॉट बी कैचिंग द फिश। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी साल 2 साल में कि आप ऐसे आपको रूल्स याद हो जाएंगे, आपको ट्रांसलेशंस याद हो जाएंगे, आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब कुछ याद कर लेंगे। लेकिन समय देना होगा। अगर आप अभी स्टार्टिंग में हैं तो, और अगर आप अभी कुछ साल 2 साल पढ़ चुके हैं तो आपको समझने में जरा सी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए मैं फटाफट आपको दूसरा एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। आप तैयार हो जाएं दूसरा एग्जाम्पल जानने के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जिसको मैंने लिया है, जिसको मैंने चूज किया है, जिसको मैंने लिया है किससे? फर्स्ट कर्ता से। मैंने फर्स्ट कर्ता से लिया है। हम लोग वृक्ष नहीं काट रहे होंगे। ओके, हम लोग वृक्ष नहीं काट रहे होंगे। आपको कर्ता रखना है सब्जेक्ट, हम लोग वी लिख दीजिए। अब तो आप बिल्कुल मजे में होंगे, मौज काट रहे होंगे। इसके साथ शैल नॉट बी लगाना है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, शैल नॉट बी लिख दिया। उसके निराश कौन आपको करने जाए, मैंने शैल नॉट बी लिख दिया जी। उसके बाद आपको वर्ब रखना, एक्शन वर्ड काटना, CUT, इसी में आईएनजी लगाना है। तो जब आईएनजी लगाते हैं, ये वर्ड फॉर्मेशन की बात है, तो T डबल हो जाएगा जी, कटिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कट करना है वही ऑब्जेक्ट है, क्या? वृक्ष, कटिंग द ट्री, TREE। अंडरस्टैंड? तो क्या हो गया भैया? वी शैल नॉट बी कटिंग द ट्री। हम लोग वृक्ष नहीं काट रहे होंगे, वी शैल नॉट बी कटिंग द ट्री। ध्यान रहे, शैल और बी के नाट में बी, नाट शैल और बी के बीच में नाट, और विल और बी के बीच में नाट आएगा। इसको ध्यान देना। तो ये हमारा रहा नेगेटिव सेंटेंस।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर आपके समझ में आया तो मुझे भी इस बात को समझाने की कोशिश करें कि सर मेरे समझ में आया। अर्थात हम कैसे समझ सकते हैं? आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके जो है उसमें कुछ हरकतें करने से। तो चलिए आप हरकत करिए। आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि सर आप जो है अभी इस चीज़ को ऐसे सुधार करके ऐसे। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी बैड इसलिए है क्योंकि मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी बैड हो जाती है। फिर भी मैंने बड़ा लिखने की कोशिश किया है और उम्मीद करते हैं सब कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। एक चीज ध्यान देना, मेरी बातों को भी सुनते रहिए गौर से और इसको देखते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके जी। बहुत धीमे लिखने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और उतनी जल्दी कवर भी नहीं कर मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा इंतजार करिए अगले वीडियो तक। मैं आपको अगले वीडियो तक के लिए वापस ले चलता हूं और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।